پریس میٹ میں انوائٹ کیا گیا ہے. اس کی وجہ ہے بنگلور شہر میں کوئی عالم پاشا نامی شخص رہتے ہیں جن سے ہماری کبھی بات نہیں ہوئی اور ملاقات بھی نہیں ہوئی، لیکن وہ گزشتہ 6-7 مہینے سے شاہین انسٹیٹیوشن کو بدنام کرنے کے لیے مسلسل ویڈیوز بنا رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں. ابھی حال میں ایک ویڈیو وہ ریلیز کیے ہیں. افسوسناک بات ہے کہ وہ غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور شاہین کو اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو عبد القدیر بیدر سے 5 کروڑ روپے مدرسے اسٹوڈنٹس کے نام سے غیر غلط پیسہ مقاصد کیا مائنارٹی ڈپارٹمنٹ سے، جس کا کوئی ڈیسگنیشن نہیں ہے، پاورس نہیں ہے. 10 کروڑ روپے اسٹوڈنٹس کے اسکالرشپ کے لیے یہ کی ادارت بیدر کو لیا. کیا نہیں یہ حرام ہے؟ کیا نہیں اس کو ضمیر احمد صاحب حلال کیا ہے؟ کیا ضمیر احمد کا پیسہ ہے؟ کیا نہیں یہ ڈائریکٹر آف مائنارٹی جو جیلانی موکاشی کا پیسہ ہے؟ کیا موکاشی کو پاور ہے کیا دینے اور موکاشی کو پاور ہے کیا ڈائریکٹر بنانے؟ یہ دونوں چیز اپنے عبد القدیر کو جو دیا گیا اس کو بولنا چاہیے. ادھر کے منسٹر جو ہے رحیم خان اور اپنے ضمیر احمد خان یہ جو اس کا جواب ضروری دینا ہے. 15 کروڑ روپے چرایا ہے عبد القدیر گلک. جی آپ نے سنا، چرایا ہے عبد القدیر گلک. میرے نام کے ساتھ یہ گلک کا اضافہ پتہ نہیں انہوں کس لیے کریں. کسی کو بھی اس طرح سے مخاطب کرنا کوئی مناسب حرکت نہیں ہے اور کسی کو چور بولنا یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے. ان کو حق ہے تحقیق کرنا، عوام کو حق ہے تحقیق کرنا اور سچائی کیا ہے اس پر ہی گفتگو ہو. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 15 کروڑ روپئے ایک ہی انسٹیٹیوشن کو کسی ڈپارٹمنٹ سے اور گورنمنٹ آف کرناٹکا سے کبھی ملے ہیں. اور یہ جو اسکالرشپ ہوتی ہے کامن سینس کی بات ہے، عوام جانتی ہے، بچہ بچہ جانتا ہے. پتہ نہیں یہ ہمارے بزرگ محترم شاہ عالم صاحب کا مزاج کیا ہے، سوچ کیا ہے، کس جذبات میں بولتے ہیں، کس کے بہکاوے میں آتے ہیں، ان کا اصل مقصد کیا ہے وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. کرناٹکا کا بچہ بچہ جانتا ہے اسکالرشپ دی جاتی ہے گورنمنٹ آف کرناٹکا کی طرف سے، وہ بچے کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اور یہ پورٹل پہ اپلائی کیا جاتا ہے اور کوئی انسٹیٹیوشن اپنی طرف سے لسٹ بنا کے نہیں دیتا. اور انسٹیٹیوشن والے اور بچے پیرنٹ بھی جانتے ہیں جب اسکالرشپ آتی ہے تو اسٹوڈنٹ انسٹیٹیوشن کو اطلاع نہیں کرتے. یہ ہمارا تجربہ ہے، بڑی محنتوں سے ہم فارم بھرواتے ہیں لیکن کوئی آج تک 2 اسٹوڈنٹ گزشتہ 15 سال میں یہ اسکالرشپ ان کو ملنے کے بعد مجھے اطلاع کرے. تو یہ بھی بات سراسر غلط ہے. اور مجھے جو ماشاءاللہ 40,000 بچوں کی ہم خدمت کر رہے ہیں، سالانہ 500 کے قریب اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ میڈیکل سیٹ دلا رہے ہیں، تو اس کے مینیجر کو، چیئرمین کو، فاؤنڈر کو چور کا لفظ استعمال کر کے لوگوں میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دیگر ویڈیوز میں یہ بتا رہے ہیں کہ شاہین میں بچوں کو زہر کھلایا جاتا ہے، یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. شاہین میں کھانا نہیں دیا جاتا ہے، جبکہ 6,000 اسٹوڈنٹ پورے انڈیا بھر سے شاہین میں ہیں. اور ابھی میں ذکر کر رہا تھا یہاں پر کہ ایک گھر کے 4-4 5-5 بچے الگ الگ وقت میں آئے اور 8-8 سال تک آتے رہے اور 4-4 ڈاکٹر بنے ہیں، 5-5 ایک گھر کے بنے ہیں. MLAs کے بیٹیاں 8-8 سال تک شاہین میں رہے. اور یہ شخص بتاتا ہے کہ شاہین میں زہر دیا جاتا ہے. اگر ایسا تھوڑا بھی نقص ہوتا تو کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو 1 سال کے بعد نہیں رکھتا.
2 साल के बाद नहीं रखता, तीसरी मर्तबा नहीं लाता, 3 साल 4 साल 5 8 साल के भी ऐसे कई केसेस हैं माशाल्लाह बच्चे हैं और बेनिफिट ले रहे हैं, जहाँ पे गरीब अमीर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ पढ़ते हैं। ये शख्स ये भी बताता है कि हुफ़ाज़ से पूजा कराई जा रही है, यानी माशरे में मिल्लत में फूट डालना, फसाद पैदा करना और इदारों को बदनाम करना है, ये भी इनके अल्फाज हैं। और गुज़िश्ता 6-7 महीने से मुसलसिल वीडियोज़ इनके जारी हो रहे हैं और बताते हैं कि अब्दुल खदीर चोर और वो वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी वक्फ प्रॉपर्टी की ख्वाहिश भी नहीं रखा, देखा भी नहीं, अप्लाई भी नहीं करा। कई लोग मशवरा दिए तो मैं उससे दूर ही रहा अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही मैं कोई वक्फ प्रॉपर्टी को लीज पे लिया हूँ, बल्कि मेरा तो मानना है कि वक्फ प्रॉपर्टी का ऐसा इस्तेमाल हो जैसा कि कोई बिल्कुल रीसेंट रेट जो होता है मार्केट का, वो वक्फ प्रॉपर्टी को जो भी किराए पे ले रहे हैं वो देना चाहिए। मेरा पर्सनल ज़ाती राय है। ये शख्स इस हवाले से भी शाहीन को बदनाम करना चाहता है। बीदर के लोग जानते हैं ये गुल्लक का शायद इनको कन्फ्यूजन हुआ है। गुल्लक यकीनन हम गुल्लक तकसीम किए हैं बीदर में 6000 गुल्लक, हम उसको सदका बॉक्स बोलते हैं, गल्ला बोलते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी मुझे गुल्लक लफ्ज़ सुनने में आया। 6000 रखने का इरादा है, 3000 सदका बॉक्स हम घर घर में रखे हैं और एक तहरीक चला रहे हैं, आओ सदक़े को ढाल बनाएं। ये तहरीक लॉकडाउन के बाद जहन में आई। हम घर को महफूज करना चाहते हैं, महल्ले को महफूज करना चाहते हैं, पूरे शहर को मुसीबतों से, बलैया से, हादिसात से महफूज करना चाहते हैं। और हमें इस बात का यकीन है कि कोई दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसी इतनी सिक्योरिटी नहीं दे सकती। अल्लाह का वादा है, सदका बेहतरीन ढाल है मुसीबतों से, बलैया से, हादिसात से बचने के लिए। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दिन की शुरुआत सदक़े से शुरू कीजिए और वो पैसा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करके गरीबों में तकसीम करते हैं, और उस पर जो खर्च होता है कलेक्शन का, ऑफिसेस का, वो हमारे ट्रस्टियान हजरात अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करके खर्च कर रहे हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट है जिसमें पूरे शहर के 137 मसाजिद को 12 क्लस्टर में डिवाइड किए हैं और हर क्लस्टर से एक ट्रस्टी को लिए हैं, और ये ट्रस्ट को रजिस्टर करके खैर के काम मस्जिद के ज़रिए करने का एक बड़ा मंसूबा है, और इससे 12-15 अहम एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। ये एक मिसाल है, लोग देखने के लिए आते हैं। और ये सिर्फ बीदर में नहीं हो रहा, इंदौर में पाकिज़ा ग्रुप वाले 10,000 डब्बे सदक़े के डब्बे रखे हैं, 20 लाख रुपये माहाना कलेक्शन करते हैं, और रत्नागिरी में 40,000 डब्बे घरों में रखे हैं और कई साल से ये काम करते हैं। बड़े इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस और मदरसे और बेवाओं को वजीफ़ा वगैरह वो सदक़े के बॉक्स से कलेक्टेड मनी से तकसीम करते हैं। बीदर में छोटा मुकाम है, बीदर छोटा मुकाम है, 3000 डब्बे रखे हैं और हम मेहनत कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। अगर किसी को एतराज़ है तो मुझसे डायरेक्ट बात करे, और इसके हवाले से यतीमों का खा रहे हैं, शादियों का पैसा खा रहे हैं बोलना, किसी को बदनाम करना, ये मुनासिब नहीं है। हम इसके लिए बेंगलुरु के एक बहुत ही मारूफ एडवोकेट पी उस्मान साहब, सीनियर लॉयर, उनसे एक नोटिस आज ही जारी किए हैं और डिफॉर्मेशन केस हम बुक कर रहे हैं। 10 करोड़ रुपए का हर्जाना हमारा डिमांड है, और 3 दिन के अंदर अंदर ये माफ़ी ना मांगे और खुलेआम माफ़ी ना मांगे तो हम ये केस करेंगे, और क्रिमिनल केस भी हम करने वाले हैं, FIR भी करने वाले हैं। हम ऐसे हरकतें करने वालों को बख्शने का मंसूबा नहीं है। कुछ 6 महीने से हम नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन ये हद से ज़्यादा हो गया है, और हमारे तमाम खैर ख्वाह चाहते हैं कि ये एक्शन लेना ही चाहिए। आप गुल्लक के ताल्लुक़ से, बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन की हमारी एक्टिविटीज़ के ताल्लुक़ से bidarbetermentfoundation.org हमारी वेबसाइट पे जाइए, देखिए क्या काम हो रहा, क्या ये गलत है। अगर गलत है तो कोई आए, मुझसे बैठ के बात करे, हम बात करने के लिए तैयार हैं। इंडिया भर से लोग आते हैं तो हम हमारी ये एक्टिविटी दिखा रहे हैं, और बेंगलुरु ही में
कुछ दिन पहले बेंगलोर के तकरीबन 20-25 NGOs को बुलाकर हम ये सारी एक्टिविटी बताए हैं। कोई छुपा हुआ काम नहीं है, ये हम अपना काम करते रहेंगे, ऐसी रुकावटों को शिद्दत के साथ रोकेंगे। और ये जो मोहतरम हैं, ये पता नहीं बेंगलोर वाले इनको किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, पता नहीं। मुझे बताया जा रहा था कि नहीं, इनका असर नहीं होगा। ठीक है, बेंगलोर वाले असर नहीं लेते, आदी हो गए हैं सुनते सुनते, लेकिन इनकी बातें बिहार वाले सुनेंगे, इनकी बातें यूपी वाले सुनेंगे, तो वो क्या तासुर लेंगे, वो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ताल्लुक से क्या तासुर लेंगे। इसके लिए हम ये एक्शन लेने पे मजबूर हैं, और हम किसी भी सूरत में इन हरकतों को कभी भी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपना एक्शन ज़रूर लेंगे। 6 महीने तक इंतजार करें, अब क्यों, इसकी क्या वजह? 6 महीने तक हम ये समझे कि ये आदी है, मजबूर है, मिजाज है इस शख्स का, शायद रिस्पांस न देने की सूरत में खामोश हो जाएगा। हम ख़तई रिस्पांस नहीं दिए, लेकिन ये हद से ज़्यादा हो गया है। आज पी उस्मान साहब एडवोकेट के ज़रिए ये नोटिस हम भेज दिए हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज दिए हैं, और 3 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब ना दें और माफ़ी ना मांगे, मीडिया के सामने माफ़ी ना मांगे, तो हम जो है फौरी नेक्स्ट एक्शन लेंगे। किसी भी सूरत में इसको हम अब नज़रअंदाज करने के मूड में नहीं। सबको कापी मिलेगी इंशाल्लाह। और कोई सवाल? आलम बादशाह की वीडियो पर जो है आपने स्टेटमेंट किया है, एक और वीडियो जो है इसी वीडियो में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जी, इसमें आपका जो बात करने का अंदाज है एक औरत से, वो वीडियो पर आप थोड़ा खुलासा करिए। जी जी, एक बच्चा मुझे कल पता चला कि वो करीमनगर का है, तेलंगाना का है, और वो 2nd ईयर का स्टूडेंट है, डिग्री का स्टूडेंट है, और कई महीनों से वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा था। सिगरेट पीते हुए आइडेंटिफाई हुआ, पकड़ा गया, उसको बार बार ताकीद कर रहे थे, वो डिसकंटिन्यू करने के मूड में था, और गैर ज़रूरी खाने पे एतराज़ कर रहा था। तो उसको हम समझाने की कोशिश करे, तो वो कुछ दोस्तों को जोड़कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, तो उसको मेरे पास लाया गया, मैं समझा कर भेजा उसको। तो दूसरे दिन, तीसरे दिन 7 लोग मिलकर करीमनगर से आए और हमारे स्टाफ से बहस व मुबाहिसा करे और मेरे चैम्बर में पहुँचे, और पता नहीं वो लोग प्लान के साथ आए थे और जज्बाती बातें करे, और वो इशारा करके कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करे। बिल्कुल सही है, हम खाना बिल्कुल बेहतरीन दे रहे हैं। मैं 12 साल स्टूडेंट्स के टेबल पे बैठ के खाया हूँ। हमारे सारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं, बीदर जानता है, और जो पेरेंट्स आते हैं एडमिशन के दौरान, ख़ास तौर पे जून, जुलाई, अगस्त में, रोज़ 300 से 500 पेरेंट्स के लिए लंच का इंतज़ाम होता है। हमारे 200 स्टाफ रेप्यूटेड स्टाफ जो बैचलर्स हैं, सब जो है हमारे मेस का खाना खाते हैं। और जिस दिन खाने के ताल्लुक से ये बच्चा एतराज़ कर रहा था, उस दिन बीदर के मारूफ शख्सियतें, हमारी एक नई ऑर्गेनाइजेशन है बीदर नागरिक सन्मार्गा समिति, उनके डायरेक्टर्स के साथ वही जो है खाना हम खाए, और वही खोरमा जो है हम खाए जिस पे इस बच्चे को एतराज़ था। तो बहल वो प्लान करके, ये सरासर झूठ है, उसको खत्ते नहीं मारा गया, ये झूठ वो प्लान बनाकर आए थे, और वो बच्चे का एडमिशन कैंसिल करना चाह रहे थे। सादगी से कर सकते थे, गुंजाइश थी, सादगी से कर सकते थे, गुंजाइश थी। अरे भाई, जहाँ सेट नहीं होता है वहाँ पे दूरी करने की गुंजाइश है। इस्लाम में जो है भी गुंजाइश है कि जहाँ पे सेट ही नहीं होता वहाँ पे दूरी की गुंजाइश है, तलाक की गुंजाइश है। तो सीधे सीधे एडमिशन कैंसिल किया जा सकता था, लेकिन प्लान बना के आकर, हालात को बिगाड़ कर, छुप कर, वीडियो बनाकर उसका गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसको नज़रअंदाज करेंगे ज़रूर, और इससे, इस शर से खैर की उम्मीद कर रहे हैं। हज़ारों लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं, और लोग शेयर कर रहे होंगे। 2-4% होते हैं जो चाहते हैं कि फासाद रहे, अंधेरा कायम रहे, इस मिजाज के लोग होते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ लोग कुछ व्यूवर्स की आस में कुछ कर लेते हैं, कुछ अप्रिशिएशन की आस में करते हैं, गैर जिम्मेदार कुछ कमेंट भी करते हैं। ये चलेगा, ये हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है।
اور ہم اس کے لیے اس کو بالکل وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے. اور شاہین میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو یہ لوگ کلیم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے وہ ویڈیو بنا کے گئے کچھ لوگ اس کو مسالے لگا کے تقسیم کر رہے ہیں. شاید اس میں کوئی خیر ہی نکلے گا. سر آپ کے شاہد گروپ ہے یا شاہد شاہین اس کو شاہد ہے نا؟ اچھا ہاں